Hello and welcome everyone to class 8th English class. Today in this video we will cover some parts of chapter 8 Nesters at Work. It's the second video of this chapter. So previously we read that author was telling that in the Himalayan regions birds find the houses as a best location for building their nest, and we also read that this chapter deal about ornithology, means the study of birds. It's a branch of science which deals with the study of birds. So author is here studying the nature and the variety of birds, and in this context he told us that it's a unique quality of birds that they find hill stations a most promising place for building their nest. So now I am going ahead of this story. I am starting from paragraph 4th of the chapter. So let's get started. The sparrow usually monopolizes these nesting sites. So author is telling that one of the bird which we know very commonly, sparrow. Author is telling that these birds, they take control of these nesting sites. Means he is telling that whatever the houses they are that are present in the hill stations or in the Himalayas, these sparrows, they take control of most of the houses. Means in most of the houses sparrows try to build their nest. He is a regular dog in the manner, for he keeps other birds out of the holes he himself cannot utilize. Author is also telling about the nature of sparrow, that these birds, they fill the most of the sites for building their nest. They utilize most of the sites that are present in a house for building their nest, in order to, it's not their requirement, but in order to keep other birds out of the holes. Means no one can build their nest. They, for the sake of this, they themselves build a number of nests which they themselves cannot utilize. This is what author is saying. तो ऑथर ये कह रहा है कि जो स्पैरो है उसके नेचर के बारे में बता रहा है कि जो स्पैरो होती हैं वो ज़्यादातर ऐसी साइट्स को, कौन सी साइट्स को, द होल्स दैट आर प्रेजेंट इन द वॉल्स एट द हिल हाउसेस, जो हिल वाले घरों में छोटे छोटे होल्स होते हैं या नैरो ओपनिंग्स होती हैं, वही उनकी साइट है नेस्ट बनाने की। तो ऐसी साइट्स को वो सबसे ज़्यादा कवर करती हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए, और सारी साइट्स को लगभग वो कवर कर लेती हैं, सारी साइट्स में अपना नेस्ट बना लेती हैं, सिर्फ इसलिए कि बाकी की चिड़िया जो है वहाँ पे अपना घोंसला न बना सकें। उनको उतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करती हैं। हाउएवर द स्पैरो इज़ नॉट क्वाइट यूबिक्विटस इन मोस्ट लार्ज हिल स्टेशंस देयर आर मोर हाउसेज दैन ही इज़ एबल टू मोनोपोलाइज। ऑथर ये कहता है कि लेकिन स्पैरो हर जगह पाई नहीं जाती हैं। ऐसा नहीं है कि स्पैरो जो है हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। और ही इज़ ऑल्सो टेलिंग दैट देर आर वेरियस हिल स्टेशंस वेयर देर आर मोर हाउसेज एंड दोज हाउसेज आर एनफ, कि वहाँ पे स्पैरो हर जगह नहीं पहुँच सकती हैं। बहुत सारे घर हैं वहाँ पे, बहुत सारे हिल स्टेशंस पे, कि हर घर को स्पैरो जो है उसको ऑब्टेन नहीं कर सकती, उस पर अपना घोंसला नहीं बना सकती है। I recently spent a couple of days in one of such, in a house situated some distance from the bazaar, a house surrounded by tree. So here author is telling some of its memories. He is telling that he spent few days in such a house which was situated nearby bazaar, and the house was surrounded by the trees. तो जो ऑथर है वो अपनी एक बात बता रहा है कि कुछ दिन वो एक ऐसे घर में रुका हुआ था जो कि बाज़ार से थोड़ी सी दूरी पे थी, और वो घर जो है पेड़ों से घिरी हुई थी। 2 green baked ticks
were busy preparing a nursery for their prospective offspring in one of the many halls presented by the building in question. तो ऑथर वहाँ पे बात रहता है तो ये बात बताता है कि दो ग्रीन बेक टिक्स, ये दो चिड़िया थीं जो कि एक नर्सरी प्रिपेयर कर रही थी अपने बच्चों के लिए। बहुत सारे होल्स थे उस बिल्डिंग में, उन बहुत सारे होल्स में से एक होल में ये चिड़िया जो है नर्सरी प्रिपेयर कर रही थी अपने, मतलब नेस्ट प्रिपेयर कर रही थी अपने बच्चों के लिए। दिस हैड वंस बीन अ रिस्पेक्टेबल बेंगलो सराउंडेड बाई अ broad वैरांडा। ऑथर कहता है कि ये जो घर जिसके बारे में बात हो रही है या जहाँ पे वो चिड़िया अपना घोंसला बना रही है, ये एक समय बहुत ही सम्मानित बंगलो हुआ करता था और इसके चारों तरफ चौड़ा वरांदा हुआ करता था। बट द डे केम व्हेन इट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ बोर्डिंग हाउस कीपर एंड इट शेयर द फेट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स टू विच दिस हैपन्स। अब कहता है लेकिन एक दिन आया कि एक दिन ये घर जो है इसको रेंट पे उठा दिया गया। जैसे लॉज वगैरह होते हैं, एक दो दिन के लिए कोई ठहरना चाहता है तो उनके लिए जो कमरे में अवेलेबल होते हैं उनको बोर्डिंग हाउस बोला जाता है। तो इसको रेंट पे उठा दिया गया सो दैट गेस्ट आके यहाँ पे कुछ दिन के लिए ठहर सकते हैं। तो ऐसे पर्पज़ के लिए उसको जो है बनाया गया। और फिर जब उसको इस तरीके से बना दिया गया तो ऑथर कहता है कि अब वो बिल्डिंग जो है अपनी किस्मत को शेयर कर रही है बाकी बिल्डिंगों के साथ जो कि उसके अगल बगल हैं। द वेरांडा वेर इनक्लोज्ड एंड डिवाइडेड अप बाय पार्टीशंस टू फॉर्म इन द वर्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट फाइन लार्ज एयरी रूम्स। तो वो जो बरामदा था उसको अब घेर दिया गया था, दीवारों से उसको डिवाइड कर दिया गया था सो दैट कि उसमें एक जिस तरीके से लोग होटल वाले एडवर्टाइज़ करते हैं कि हमारे होटल्स में बहुत ही फर्निश्ड फाइन बड़े बड़े लार्ज एयरी रूम्स हवादार कमरे हैं, तो उस फॉर्म में उस वरांदा को कन्वर्ट कर दिया गया था। देयर कैन बी नो डाउट एज टू देयर एयरीनेस बट कैप्टियस पर्सन माइट डिस्प्यूट देयर टाइटल टू अदर एपिथेट्स। ऑथर कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो कमरा जो है बहुत ज़्यादा एयरी था, कमरा वाकई में बहुत ज़्यादा हवादार था। लेकिन ऐसे पर्सन्स जो कि गलतियों को पकड़ने वाले होते हैं, गलतियों का पकड़ना उनकी आदत होती है, वो ज़रूर इस बात से डिसएग्री करेंगे और वो ज़रूर इसकी क्वालिटी में जो है कमी देखेंगे और उसमें गलतियाँ निकालेंगे। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो till here. In the next video we will do the rest of the chapter. Thank you.